In this video, we are discussing Uttarakhand Judicial Services Exam 2019's previous year questions, all important questions. First question is, asylum stops where extradition begins. Above statement was made by staff. Option B is the correct answer. Asylum stops where extradition begins is said by staff. Question 2. Declaring a diplomat persona non grata is a right of receiving state. Persona non grata, the concept, it's the right of receiving state to not welcome. The person not welcome. Persona non grata is the person not welcome. तो ये डिक्लेयर करने का राइट किसका? रिसीविंग स्टेट का. द टर्म यूनाइटेड नेशन वॉज सजेस्टेड बाय रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को सजेस्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के लाइज में, और ये टर्म यूज़ की थी टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विल्सन चर्चिल को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर दोज whose name are mentioned in Article 7 of UN Charter. Chapter 3 deals with organs of the United Nations. These organs are: number 1, General Assembly; 2, Security Council; 3, Economic and Social Council; 4, Trusteeship Council; 5, International Court of Justice; and 6, Secretariat. There are 6 important organs of UN Charter. In which Supreme Court case it was held that the preamble is the basic structure of the Constitution? So answer B, option B is the correct answer. केशवानंद भारती versus State of Kerala में ये बोला गया था कि preamble is the basic structure of the Constitution. Out of the following, who has not been elected as judge of International Court of Justice? Nagendra Singh. Dr. Nagendra Singh was judge of International Court of Justice. Dalveer Bhandari is presently judge of International Court of Justice. R.S. Pathak was International Court of Justice के judge. Option D is the correct answer. Ranganathan Mishra, he was not elected as judge of International Court of Justice. Option D, Ranganathan Mishra. Which of the following is known as the Earth Summit? Earth Summit की तरह किसको जाना जाता है? So options are United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Conference on the Environment and Development. Option B is the correct answer. United Nations Conference on the Environment and Development. और इसको रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है. रियो कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है. Rio Summit, Rio Conference, and Earth Summit is Environment and Development. United Nations Conference on Environment and Development, Earth Summit के नाम से जानते हैं इसको. Next question is, which is not a peaceful means of settlement of dispute under international law? Good offices is not. Retortion है, conciliation है, negotiation है. Good office नहीं है. Next question, how many members are in Security Council? Security Council में total 15 members होते हैं, 5 permanent and 10 temporary members. Option C is the correct answer. Which of the following statement is correct? So the options are: the concept of citizenship is irrelevant in the international law. The concept of citizenship is irrelevant in municipal law. The concept of citizenship is relevant in both international as well as municipal law. D, the concept of citizenship is irrelevant to international law. So option D is the correct answer. International law में कोई concept of citizenship नहीं होता है. So is irrelevant in international law. Next question, the person born not in the country of his parent would be the national of the country where he is born on the basis of the principle जज सोली. तो जज सोली का प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ सॉइल. उस पर लॉ ऑफ सॉइल अप्लाई होगा जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ पर. तो ये प्रिंसिपल ऑफ द पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस वेयर द पर्सन वॉज बोर्न. जज सोली इज द मोस्ट कॉमन मीन्स फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप अमंग नेशंस. मोस्ट कॉमन तरीका है ये सिटीजनशिप एक्वायर करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 11. Option D is the correct answer. Total 11 duties हैं.
फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दे रखा है और ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी और ओरिजिनली टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। Next question is, when new state is formed through revolt, recognition usually granted is de facto. अगर revolt से कोई न्यू स्टेट फॉर्म हुआ है तो रिकॉग्निशन जो ग्रांट की गई है वो डी फैक्टो रिकॉग्निशन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग amendment to the constitution is related with reservation of seats in educational institution for the economically weaker section of citizens. economically weaker sections of citizens के लिए reservation of seats are provided by 103rd amendment of the constitution. 103rd amendment of the constitution deals with economical weaker section के लिए reservation. ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था जिसने एम्पावर किया स्टेट को 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में फॉर एजुकेशन एंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए ऑफ विच सिटीजन अदर देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड नॉन क्रीमी लेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस आर इंक्लूडेड। इनको छोड़ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड नॉन क्रीमी लेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को छोड़ के इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देने के लिए 103rd अमेंडमेंट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक? सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है 2016 का, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। केस का नाम है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Next question is, which article of the Constitution of India provide for reservation of seats for women in panchayats? Article 243D provides for reservation of seats of women in panchayats. Right in rem is available against. Rem का मतलब क्या है? Available against everyone. Option B is the correct answer. Action in rem and action in personam होते हैं। जो rem है is available against the whole world, but the right in personam is available against a particular person. Next question is, who among the following put the international law as positive morality? किसने international law को as positive morality बोला था? So answer is A. अस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को एज पॉजिटिव मोरालिटी बोला था। इसने इसको इंटरनेशनल लॉ को एज लॉ रिकॉग्नाइज करने से, ट्रू लॉ रिकॉग्नाइज करने से मना किया था, जॉन अस्टिन। उसके बाद, एज पर द पेटेंट एक्ट 1970, क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी in India are novelty, inventive step, capable of industrial application. All of the above is the correct answer. Novelty, inventive step, capable of industrial application, इन सब बेसिस पे इंडियन पेटेंट एक्ट में पेटेंटेबिलिटी है। Who is not a member of SAARC in the following? Singapore is not a member of SAARC. India, Pakistan and Bhutan are the member of SAARC countries. सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर मेंबर्स ऑफ द सार्क। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। रिमेंबर दिस। There are total 8 SAARC countries. South Asian Association for Regional Cooperation. Next question is, how many articles are in Indian Constitution? 395 articles. Total 395 articles हैं Indian Constitution में। वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स हैं। जब ये शुरू में आया था तब कमेंसमेंट के टाइम पे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 448 आर्टिकल्स इन, अगर हम काउंट करते तो इन
5 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लिटरेसी, हेल्थ, अनटचेबिलिटी रिमूवल, फूड गारंटी। इट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अनटचेबिलिटी रिमूवल से डील करते हैं आर्टिकल 17। Article 17 of the Constitution is a legislation that abolish practice of untouchability in any form. According to the provision of Article 17, enforcement of any disability arising out of untouchability is punishable offence in accordance with law. Our next question is, which state of India has made rainwater harvesting compulsory for every house? So correct answer was 23 का डी, दैट इज तमिलनाडु। ये क्वेश्चन अभी के टाइम पे इतना रेलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो इस बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं कि आज के टाइम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? सीआरपीसी कौन से लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में। बीएनएसएस भी कंकरेंट लिस्ट में ही आएगा, ठीक है। सो कंकरेंट लिस्ट में है और इस पे दोनों हमारी यूनियन और स्टेट लेजिस्लेशन दोनों लॉ बना सकते हैं, दैट इज कंकरेंट लिस्ट, बीएनएसएस भी, और जो भी तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, न्यू क्रिमिनल्स, वो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट है, विच इज द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? 25th हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है, 2019 में बनी थी। टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में अभी भी 25 ही है, अमरावती हाई कोर्ट ही लेटेस्ट हाई कोर्ट है। ये अभी भी पूछा जा सकता है, ये रिलेवेंट है अभी आज के सिनेरियो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, द टर्मिनोलॉजी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री? प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज टेकन फ्रॉम जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी? डिफाइंस आर्टिकल 366 क्लॉज 18 डिफाइंस द proclamation of emergency, and it says proclamation issued under clause 1 of article 352 में जो proclamation issue की गई है वो proclamation of emergency है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स हैव टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर? यूपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर कितना होता है? 2 years, 3 years, 5 years या 6 years? आंसर इज डी, 6 ईयर। यूपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स तक हो सकता है। आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 316 डील करता है अपॉइंटमेंट एंड द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर। 29 है, न्यूरेमबर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल, पेलिसुअल ट्रायल एंड इंचमेंट ट्रायल रिलेटेड टू whom? किससे रिलेट करते हैं ट्रायल्स? वॉर क्राइम्स से। न्यूरेमबर्ग, टोक्यो, पेलिसुस, लिंचमेंट ट्रायल रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन से रिलेट नहीं करता है, वो कौन सा प्रिंसिपल है? दैट इज मनरो डॉक्ट्राइन। ये रिलेट नहीं करता मनरो डॉक्ट्राइन, दैट इज ऑप्शन बी, टोबार, स्टेम्पसन or Estada. These doctrine relates to recognition. Monroe Doctrine does not relates to recognition. The Monroe Doctrine was a United States policy which opposed European colonialism in the Americans. तो ये जो Monroe Doctrine था यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है जो कि यूरोपियन colonialism को अपोज करता है अमेरिका में। It begins in 1823. The doctrine noted that the US would recognize and not interference with existing European colonies nor meddle in internal affairs of European countries. So, Monroe Doctrine deals with European colonialism in Americans. It doesn't deal with recognition of state. Tobar, Stimson, Estada Doctrine deals with recognition of states. Next question is, Justice Dalveer Bhandari has a re-elected term as justice in the International Court of Justice for a term
2018 to 2027। तो जस्टिस दलवीर भंडारी, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अभी भी प्रिसाइडिंग जज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और 2018 से 2027 तक री इलेक्ट हुए हैं, के लिए री इलेक्ट हुए हैं। Next question is, which city of India received the cleanest city award on March 6, 2019 में? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज की डेट में कौन सी सिटी क्लीनेस्ट सिटी है वो आप चेक करके जाना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 33, which justice has been appointed as the first ombudsman of India? First ombudsman of India was Justice Pinaki Chandra Ghosh. Next question, which is the 43rd member of Australia group? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 43rd मेंबर इंडिया है। अभी अगर इंडिया ने, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2015, 25 या 24 में अगर इंडिया कोई ऐसे मेंबर्स ने बना है किसी का, तो वो रिलेवेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर हैज़ वन हाउस? वन हाउस कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इन ऑप्शंस में तमिलनाडु में वन हाउस है, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र में 2 हाउसेज हैं। Bicameral legislature is a legislative system having 2 tier of the assembly. यहाँ पे 2 tiers होते हैं bicameral में, chambers और houses. In India, central legislature, that is parliament, is bicameral. However, state except few states are generally unicameral. The 2 houses in the state legislature are called legislative assembly and legislative council. There are only 6 states which have 2 tier legislature: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आई रिपीट, 6 हैं जहाँ पे 2 tier legislature है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। So Tamil Nadu is not the correct answer. Next question है, which case it was decided that the preamble is not a part of the constitution? Preamble is not a part of the constitution, किस केस में कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये री बेरूबरी के केस में कहा था। इन द सुप्रीम कोर्ट इन द री बेरूबरी यूनियन केस 1960 का केस है, हेल्ड दैट द preamble is not a part of the constitution, इस केस में कहा था। 6th schedule of the Constitution of India does not provide for the administration of tribal area in Manipur. The 6th schedule consists of provision for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. So Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram के लिए 6th schedule deal करता है, not Manipur. According to Article 244 of the Indian Constitution, ACDs are bodies representing the district to which the Constitution has given varying degrees of autonomy, which the state legislature within the state legislature. So these states are Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, जो 6th शेड्यूल से कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ बीन डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस? एसएस लोटस केस वॉज डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। एसएस लोटस केस इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्वा एट बोनो, एक्स एक्वा एट बोनो मैक्सिम रिलेट्स टू, it relates to source of international law. A, yes, it relates to source of international law. It means according to right and good. So it is a source of it denotes from equity and good conscience. In which year World Health Organization has been constitution? Organizations are important, so World Health Organization कब constitute हुई थी? 1946 में। Who is the writer of book Theory of Justice? स्टैमलर की बुक है Theory of Justice. The Prevention of Corruption Amendment Act 2018 came into force 26 जुलाई 2018। तो 2025 के एग्ज़ाम के लिए
या फिर जिस भी ईयर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल जितने भी न्यू लॉज या बिल्स पास हुए हैं उनका कमेंसमेंट डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो आप चेक करके जाना। द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज साइंड बाय जस्टिस इज साइन बाय हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन कौन साइन करते हैं? चेयरमैन एंड रजिस्ट्रार बोथ ए एंड बी साइन द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फॉर द वर्ड उत्तरांचल, द वर्ड उत्तराखंड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय उत्तरांचल अल्टरनेशन ऑफ नेम एक्ट इन द ईयर 2006। 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज हुआ उत्तराखंड, उससे पहले इसे उत्तरांचल बोला जाता था। Next question is the Fugitive Economic Offender Act 2018. Act number 17 of 2018 shall be deemed to have been came into force 21st April 2018. ये तब का एक्ट था, तो अभी जैसे अभी रिसेंटली वक्फ एक्ट्स के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स हुए हैं और भी कई एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो चेक करके जाना। जैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ है, सो उसकी कमेंसमेंट डेट एंड ऑल these things becomes relevant for the exam. The Indian Constitution concerns cornerstone of a nation. Indian Constitution is cornerstone of a nation. Book was authored by ग्रेवलिन ऑस्टिन की बुक है, ग्रेवलिन ऑस्टिन की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन। जॉन ऑस्टिन नहीं है, ग्रेवलिन ऑस्टिन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया was vice president of India from 1979 to 1984? जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1979 से 1984 तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइज स्टेट? स्विट्जरलैंड इज अ न्यूट्रलाइज स्टेट। 48 स्विट्जरलैंड इज अ न्यूट्रलाइज स्टेट। न्यूट्रलाइज स्टेट्स होते कौन हैं? जो शांत रहते हैं, जो मतलब जब कोई वॉर वगैरह होती है वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी एक पक्ष में नहीं होते, दैट इज न्यूट्रलाइज। स्विट्जरलैंड इज अ न्यूट्रलाइज स्टेट। 49 what is the width of the excluded economic zone? अच्छा, इकोनॉमिक जोन इन द इंटरनेशनल लॉ कितना width है इंटरनेशनल एक्सक्लूडेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक जोन का इंटरनेशनल लॉ में? दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स। सभी 12 नॉटिकल माइल 24 नॉटिकल माइल्स क्या है ये भी आप चेक कर लेना। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? करंट चेयरमैन अजय कुमार है, 15 मई 2025 से को अपॉइंट हुए थे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी के लिए अजय कुमार 15 मई 2025 को अपॉइंट हुए थे। ये थे सारे जीके के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 50 तक। ये एक पार्ट हमने अपने पेपर का कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसलिए हम लॉ वाला पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।